Hello students, on the previous class we had discussed meaning, nature, types of learning. Today we discuss dimensions of a learning process which is brought from learning and teaching subjects. Let us discuss the 5 dimensions of learning. Education and teaching method morph constantly, and educators have developed the 5 dimensions of learning to effectively utilize the newest theories in learning. Basically, total educational pattern focus on research, observation, and classroom interaction. When we impart knowledge to the students, we judge, we study, and we analyze the behavior of the student step by step during their teaching learning process. Let us discuss 5 dimensions of learning. First, purpose. It is objective, it is aim, reason, and goal. This dimension implies that all instruction should have a purpose beyond the specific task or concept being taught. Changing demands new understanding. We are all follow new trends, new patterns, and new cultures. इस आयाम का तात्पर्य यह है कि अभी अनुदेश का एक उद्देश्य विशिष्ट कार्य या अवधारणा से परे होना चाहिए. Ideas must be universally applicable and transferable to real world situations or problem solving. We impart the knowledge to the two students to know their value of life and solve their problem which arises in front of their life. Second step, curriculum and pedagogy. What is curriculum? The subjects comprising a course of study in a school or college. What is pedagogy? Pedagogy is often described as the act of teaching or the method of teaching. Otherwise, we called it is the way a teacher imparts knowledge to the learner. Pathyakram or Shiksha Shastra. All of the tasks and resources used in the lesson must be appropriate for the student ability level and yet challenges him to learn. छात्र का विभिन्नता को देखते हुए हम लोगों को टीचर लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है. बच्चे लोगों का बौद्धिक क्षमता और उनका शारीरिक क्षमता को देखते हुए शिक्षा देना चाहिए. ये करिकुलम और पेडागोजी में आता है. प्रिपेयर ये वेल लेसन प्लान. जब बच्चे लोग को पढ़ाया जाता है उसी समय उन लोग के लिए अच्छा लेसन प्लानिंग बनाना होता है और लेसन प्लानिंग को फॉलो करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए. थर्ड स्टेप, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट. छात्र की व्यस्तता, डेट्स, activities and practices. Students must be given classroom tasks that are relevant and reinforce the lesson being taught. Always we should give the task to the student as per home assignment because we want to engage them which they learn on the classroom. बच्चे को बीच बीच में टास्क देना इसीलिए ज़रूरी होता है जो कि वो पढ़ाई किए हैं उसको प्रैक्टिकल तौर पर उसको प्रैक्टिस कर पाए. दिस अप्रोप्रिएट टास्क इंक्लूड्स रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसाइफरिंग लेसन्स टू डिस्कवर द मीनिंग. वो किसी भी तरह हो सकता है. पढ़ने को दिया जाए, सोचने के लिए कोई टास्क दिया जाए और कोई समस्या समाधान करने के लिए दिया जाए या लिखने को दिया जाए. ये सब देना जरूरी क्योंकि बच्चों को हम लोग को एंगेज कर सकें. ये हम लोग का 5 लर्निंग मॉडल टीचिंग लर्निंग या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आता है जो बच्चों लोग को हमेशा एंगेज कराना चाहिए. फोर्थ, assessment and student learning.
मूल्यांकन और छात्र सीखने। Students should be able to and even expected to assess their own progress. छात्रों को अपनी प्रगति का आकलन करने और इस कार्य का करने में सक्षम होना चाहिए। We assess students periodically, systematically and routinely because assessment is the overall performances of the students during their academic sessions. We assess them formatively and summatively. बच्चे लोग को एक साल के दौरान एक बार एग्ज़ाम होता है या बहुत बार एग्ज़ाम लेके बच्चे लोग को आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है जो कैसे वो लोग पढ़ पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं और कितना सक्षम हो पा रहे हैं पढ़ाई को आत्मसात करने को। 5 पॉइंट क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड कल्चर। कक्षा का वातावरण और संस्कृति। Teachers must utilize the physical classroom space to maximize learning. In inclusive classrooms, for instance, there are learning centers instead of front-facing desks. बच्चों लोग को ये समावेशी शिक्षा बोलते हैं inclusive education, where disabled children are able to study in one classroom in one roof. एक छत के नीचे एक साधारण बच्चों के सामने बैठ के पढ़ाई करने का शारीरिक अक्षमता व्यक्ति बच्चे को शारीरिक अक्षम बच्चे लोग को मिलना चाहिए। ये समावेशी शिक्षा का अंतर्गत आता है। टीचर्स मस्ट यूटिलाइज द फिजिकल क्लासरूम में बच्चे बैठेंगे, जैसे जिसको सुनने का प्रॉब्लम हो, देखने का प्रॉब्लम हो, चलने का प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम को देखते हुए क्लासरूम को अरेंज करना चाहिए। ये काम टीचर के ऊपर पड़ता है और टीचर इसको प्रयास करते हैं बच्चे लोग को कैसे प्रॉपरली बैठ पाए और आराम से पढ़ पाए। Each student should feel welcome and positive about his ability to learn, reinforced when he succeeds and supported in his efforts. Everything should be arranged periodically, systematically. स्टूडेंट को कैसे कोई दुविधा ना हो और उनको पढ़ाने के दौरान हमेशा उनका सकारात्मक सोच में विकास हो, उसके लिए बीच बीच में उनको रेनफोर्स करना चाहिए, जिसको बोलते हैं पुनर्बलन करना चाहिए। उसका ये होता है जैसे कोई बच्चे आंसर करते हैं, उनको अच्छा करते हैं तो उनको वेल डन बोला जाता है, बहुत अच्छा करते हैं गुड परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस। ऐसे हम लोग जो बीच बीच में जो वर्डिंग यूज़ करते हैं ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में जाता है। इसमें बच्चे लोग का सकारात्मक जो सोच उसमें विकास होता है और उन लोग प्रयास करते हैं जो हम लोग और ज़्यादा अच्छा करें और बेटर करें, जिसमें हम लोग को पढ़ाने के साथ साथ हम लोग को स्टूडेंट के साथ में और टीचर लोगों को मतलब वो लोग हम लोग को काबिलियत को समझ पाए, इसलिए वो लोग बीच बीच में प्रयास करते हैं। ये हम लोग को पढ़ाने का दौरान किया जाता है। और जब हम लोग को स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, ये डायमेंशंस ऑफ लर्निंग जो दिशाएं अधिगम का और शिक्षण अधिगम का जो दिशाएं होता है, ये अभी का समय में इसको हम प्रेजेंट सिचुएशन में देखते हैं तो ये रचनात्मक शैली में होता है, जहाँ पे हर चीज़ में स्टूडेंट ही सेंटर में रहते हैं और we provide them the as teacher learner centered education या student centered education, जहाँ पे स्टूडेंट ही सेंटर पर रहते हैं, टीचर एज ए हेल्पर, एज ए मोटिवेटर एंड एज ए गाइडर। टीचर हमेशा रोल करते हैं एक तो अभिप्रेरित करने वाले, एक तो गाइड के हिसाब से, लेकिन और एक तो मदद करने वाले होते हैं, लेकिन वो हम हर चीज़ को यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज हम लोग को 5 डायमेंशंस के बारे में पढ़ाई किए और प्रयास करेंगे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।